Abdiyamni. There is no power with a tricord. Good morning, everybody. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, everybody. मुस्कान, you have to organize yourself. एक टाइम बनाओ, उसी टाइम पे सब करो. Revision. Like I say, first, weekly, then monthly. Good morning. Good morning. God bless you all. God bless you. I'm good. I'm good. Thank you. God bless you. God bless you. God bless you all. Thank you. Thank you. Thank you, everybody. Good morning and happy Vaisakhi. Good morning. Good morning. Good morning, everybody. आपको भी सबको वैसाखी की शुभकामनाएं. Jasprit, then if he's coming from the defense, then he'll be cross-examined. Yeah, because in that case, he's already making a corroborative statement for the purpose of the accused. He's brought by the accused. So he'll be cross-examined by the prosecution. So corroboration तो है ही नहीं, क्योंकि पहले तो उसका लिया नहीं हमने कभी भी. Good morning, good morning. God bless you. Yes, can be used. No. Yes. No. जो दूसरा होता है वो फ्रेश स्टेटमेंट होती है. इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, आशना. सो सेकंड एफआईआर कैन बी यूज्ड टू corroborate. Good morning, good morning, good morning, everybody. God bless you. Good morning. Thank you, Kanika. Why anxiety, Rishika? Yeah, you can talk to me. Give me a message. Just send me a WhatsApp message. I'll tell you what time I'm free. You can call me up. Okay, let's start now. Lot of syllabus to cover. Okay, let's start today's BNSS. In my previous lecture, we were talking about the recording of oral evidence by the IO. The statement of a witness is taken under the erstwhile 161 CRPC, which has now become section 180 of BNSS. And we saw that though it is not a signed statement and it is not under oath, yet there was a duty laid down by this law that they have to tell the truth. In case they lie or they withhold information, then in that case it's an offense punishable under IPC. We read 180 along with section 181, 161 read with section 162. In 162 or 181 we read that every statement which is taken shall not be signed. A. B. We read that these statements can be used only for the purpose of contradicting the maker of the statement. In other words, these cannot be used for corroborating him or anybody else. In other words, 161 or 180 BNSS statements are never corroborative in nature. They can only be used for the purpose of contradicting. The law of contradicting or contradiction is given in section 145 Indian Evidence Act. And when we talk about Indian Evidence Act 145, it says that the witness can be contradicted by his previous statement without the statement being shown to him. So the law of contradiction is admissible in Evidence Act under 145, and what can be contradicted is given here, both these sections, 180 read with section 181. We saw the entire law of this, how it can be used. Also, if two FIRs are registered, we saw so many aspects in my last lecture. And finally, we read another thing, that even omissions amount to contradictions.
it may amount to contradictions. This is a very important question from Main's point of view. Omissions may amount to contradictions, A, if they are material in nature. Minor aberrations or omissions will not be taken as contradictions. So, an omission to become a contradiction first must be a material omission. And secondly, it cannot be straightaway taken as a contradiction. As per the Supreme Court judgments, this omission must be brought to the notice of the concerned witness. And only if he is not able to give a satisfactory reply, then only an omission may be taken as a contradiction. There were some exceptions given in the law itself, where we see that despite the fact that these are statements taken by the police, yet they will not be used only for contradiction, they can be used for corroboration also. And major things were dying declaration. And even if a dying declaration, I told you, even if a person survives, even then, though his statement is no longer a dying declaration, yet it can be used for corroborative purposes. Similarly, a discovery of a fact in Section 27 Evidence Act, though it amounts to an admission, and though it is a statement taken by the police, during a course of investigation, still, by virtue of this proviso, it can be used for corroboration also. However, if a TIP is taken by the police, it cannot be used for corroboration. It can be used only for contradiction, for a later identification which the witness does on oath during the course of the trial. We saw all those aspects in my previous lecture. We now continue from here. We had covered ground till here. We'll now continue from here. We now go on to section 163 CRPC, which is now section 182. Now, this is a reflection of what we have read earlier in Evidence Act. No inducement will be offered by the police. So basically, this is the section in CRPC, in BNSS, which clearly says that no police officer or other person in authority shall make or offer or make or cause to be offered or made any such inducement, threat or promise as is mentioned in section 22. जो हम सेक्शन 22 BSA में पढ़ चुके हैं, जो पुराना सेक्शन 24 एविडेंस एक्ट था, वो इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस जो जिस लिहाज में बोला गया है, उस लिहाज में यहाँ पे पढ़ना है. Because it is very clearly written that inducement, threat or promise has to be as per section 22 of BSA. So वही चीज जो हम 22 में पढ़ चुके हैं, उसका BNSS में एक statutory reflection भी है, but pertaining only to policemen or persons in authority. So जब भी आप 22 एविडेंस एक्ट के बारे में लिखो, सॉरी 22 BSA के बारे में लिखो, तो then you must cross refer with this section. इसमें भी ये चीज clearly की गई है. I hope now everybody is clear on this section. ये बहुत important है. कई बार क्या होता है कि इंटरव्यू में जब वो 24 या 22 BSA डिस्कस कर रहे होते हैं, तो कई बार पूछ लेते हैं कि CRPC में ऐसा कोई पैरेलल प्रोविजन है, तो ऐसे प्रोविजंस का सेक्शन भी याद रखना पड़ेगा, बिकॉज दीज आर पॉइंटेड क्वेश्चंस इन द इंटरव्यू कि कोई ऐसा हुआ, ऐसे मिलता जुलता सेक्शन तो आप बताइए. ओके, continuing. But no police officer other than or other person shall prevent by any caution or otherwise any person from making in the course of an investigation under this chapter any statement which he may be disposed of to make with his own free will. Now, this is in stark contrast to a confession being recorded by a magistrate. A magistrate must give a warning that you are not supposed to be saying, confessing. But in case you are confessing with your own free will, then this confession is going to be used against you. Now,
A policeman, since a confession before a police is not valid, nor is a confession in police custody admissible. So, because of this, police is not bound by this aspect that they are supposed to warn कि you are not going to confess or admit. इसका मतलब ये हो गया, अगर अपनी फ्री विल से कोई कन्फेशन करता है तो उसका फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं है। आप फ्री विल से करो या मेरे दो चांटे खा के करो, दो चांटों से तो नहीं वो बात बनती, ज्यादा बनती, तो आप उससे करो, उससे क्या फर्क पड़ता है? एडमिसिबल तो है नहीं। ये किस एंगल से लिखा गया है? ये 27 एविडेंस एक्ट के डिस्कवरी के एंगल से लिखा गया है कि जहां पे 27 की डिस्कवरी हो रही है वहां पे दिस विल नाउ कम इनटू एक्शन। क्या आई एम नॉट सपोज टू बी टेलिंग कि तू जो डिस्कवरी कराने जा रहा है वो तेरे खिलाफ यूज होगी? सो आई एम नॉट सपोज टू बी टेलिंग दिस। सो इसीलिए ये बना हुआ है। कई बार ये इतनी बारीकियों में जाना है द व्हाई, कि देखा जाए तो आप कन्फेस प्यार से करो या मार खा के करो, वैलिड ही नहीं है। आप जितना मर्जी कन्फेस करो मेरे सामने, तो फिर लिखने का मतलब क्या था? इसका मतलब सिर्फ एंगल, जब सी हमें एविडेंस एक्ट के साथ ही जोड़ के पढ़ना है सारा लो। तो कन्फेशंस वहां पे हमने देखा है 27 में डिस्कवरी अपनी मर्जी से वो करता है, तो वो डिस्कवरी कराने जा रहा है, मैं कह रहा हूँ रुको रुको रुको, डिस्कवरी से पहले तुम्हें मैं वार्न करना चाहता हूँ कि तुम्हारी ये डिस्कवरी तुम्हारे खिलाफ यूज होगी, करोबोरेटिव इसकी वैल्यू है। वो कहेगा रुको जी मैं नहीं करता, तो हो गया फिर तो। इसीलिए पुलिस के ऊपर ये ड्यूटी नहीं है कि 27 से पहले उसको वार्न करे। इसलिए ये क्वेश्चन इंटरव्यू के लिए ध्यान रखना कि इज द पुलिस सपोज टू बी वार्निंग अ पर्सन बिफोर मेकिंग अ डिस्कवरी अंडर 27 एविडेंस एक्ट? नो। कहां कहीं लिखा है? एविडेंस एक्ट में तो नहीं लिखा था, पर यहां लिखा है। सो पुलिस की कहीं जिम्मेवारी नहीं है कि वो वार्न करे कि अगर तुमने कहा तो तुम्हारे खिलाफ यूज होगा। आई एम नॉट सपोज टू बी वार्निंग हिम। Provided that nothing in this section shall affect the provisions of subsection 4 of section 183. हम अभी आए नहीं, अब 183 पढ़ने वाले, विल कम टू दैट, कि जहां पे एक मैजिस्ट्रेट के सामने कन्फेशन है और पुलिस वाला लेके जा रहा है, वहां पे तो फिर वो देना ही पड़ेगा वार्निंग। नाउ वी कम टू 183, a very very important section. 183 के दो हिस्से हैं, या 164 था पहले, उसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा डील करता है कन्फेशन से और दूसरा हिस्सा डील करता है स्टेटमेंट से। कन्फेशंस कौन करेगा? एक्यूज करेगा। स्टेटमेंट कौन को देगा? कोई भी विटनेस करेगा। कन्फेशन का लॉ जो है वो बहुत हद तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से भी जुड़ा हुआ है, मेरे फंडामेंटल राइट से भी जुड़ा हुआ है, आर्टिकल 20 क्लॉज 3 से भी जुड़ा हुआ है। दूसरा, जैसा कि मैंने बोला था, कन्फेशन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन एंड कन्फेशन ड्यूरिंग ट्रायल में फर्क है। कन्फेशन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ही उसको प्रोड्यूस करती है। We cannot be absolutely dead sure that police has not brought him under some pressure. इसलिए कल को अगर वो रिट्रैक्ट भी करता है तो कर सकता है। इसीलिए इवन अगर कन्फेशन रिकॉर्ड कर रहा है मैजिस्ट्रेट, ये उसको वार्न करेगा कि यू आर नॉट सपोज टू बी गिविंग अ कन्फेशन, और इसका सर्टिफाई करेगा कि मैंने इसको वार्न किया, और फिर भी अगर तुम करना चाहते हो तो ये तुम्हारे खिलाफ यूज हो सकता है। So both these things he will certify.
so that Article 20 Clause 3 is not hit as a fundamental right. Also, there are chances, since he is being produced by the police, he may be under coercion, he may be under threat, he may be under inducement, he can be under anything, which will basically make his confession invalid by virtue of section 22 of BSA or 24 of Evidence Act. इसीलिए अगर ओथ पे हम ले लेते तो फिर ये कल को अगर रिट्रैक्ट करे तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते थे 193 एविडेंस एक्ट, सॉरी आईपीसी की 7 साल की सजा। प्रेशर में आ जाता कि झूठा कन्फेशन किया, उसको उस पे मुझे कायम रहना है, नहीं तो फिर तो ये मेरे खिलाफ और एक 7 साल की सजा शुरू हो जाएगी। दैट इज द रीजन व्हाई कन्फेशंस आर नॉट टेकन अंडर ओथ। सो कन्फेशंस इन investigation A cannot be taken by the police by virtue of section 25 Evidence Act. They can be taken by the magistrate, but then they will not be under oath. And they will also be accompanied with a certificate by the magistrate that I have warned him that there is no need to give this ignorant confession and this is going to be used against you. And the magistrate must ensure that there is no coercion, any inducement, threat or promise. इसीलिए कन्फेशन के बाद वो पुलिस के साथ वापस नहीं भेजता कभी भी। जब भी मैजिस्ट्रेट के सामने कन्फेशन होता है हम उसको वापस जेल भेजते हैं, क्योंकि अगर सपोज उसने ना दिया कन्फेशन तो वापस पुलिस लेके जाएगी तो सोचो क्या हाल करेगी उसका। इसीलिए कभी भी कन्फेशन करने के बाद उसको वापस थाने नहीं भेजा जाता। ही इज ऑलवेज सेंट टू अ जेसी। However, it is a signed statement. Though it is not under oath, but it is a signed statement. ये इस सेक्शन में नहीं लिखा हुआ साइनिंग के बारे में। कन्फेशन लेने का तरीके का एक अलग सेक्शन है जनरल प्रोविजंस में, जो है हमारा सेक्शन 316 बीएनएसएस 316, जो तरीका बताता है कि किस तरह से आपने कन्फेशन लेना है, और वहां लिखा हुआ है दैट इट विल बी अ साइंड स्टेटमेंट। सो इट इज नॉट अंडर ओथ बट इट इज अ साइंड स्टेटमेंट। ये आपके प्रीलिम्स में बहुत बार एक क्वेश्चन आ गया। हाउएवर जब हमने लेना है एक विटनेस का स्टेटमेंट, तो पहला क्वेश्चन ये है कि विटनेस का स्टेटमेंट क्यों मैजिस्ट्रेट क्यों ले। जो मटेरियल हमारे विटनेसेस होते हैं, जो आई विटनेस हैं, जिनके ऊपर पूरा केस डिपेंड कर रहा है, जब पुलिस को ये डर हो कि ये आदमी या तो पैसे से बिक जाएगा या थ्रेट के अंदर बकल डाउन कर जाएगा, तो फिर इसको इंश्योर करने के लिए कि बाद में ना बिदक जाए, क्योंकि 161 तो साइंड भी नहीं है, वो फिर इसका ये वाला 164 या जो हम कहते हैं 183 इसका स्टेटमेंट करवाता है मैजिस्ट्रेट के सामने अंडर ओथ। नाउ ही इज अंडर प्रेशर कि अब अगर उसने कोर्ट में उल्टा बयान दिया तो अब पुलिस कहेगी जी 193 की कार्रवाई करो, इसके खिलाफ 7 साल की सजा दिलाओ। इनफैक्ट ये हुआ, जेसिका लाल का जो केस हुआ था उसमें 3-4 जो हाई सोसाइटी वाली उसकी फ्रेंड्स थी जिनके सामने मर्डर हुआ था, जैसे रमनी थी, उसका 164 में पुलिस ने करा दिया था और कोर्ट में जाके वो बिदगी कि जी मुझे नहीं, कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं देखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके खिलाफ 193 की कार्रवाई करो। वो भागी आई अगले दिन, उसने कहा नहीं नहीं सर याद आ गया, मुझे दोबारा देना है। और फिर उसने दोबारा दिया, जब उसने कहा सारी बात बताई, तब जाके वो बाद में कन्विक्ट हुआ। सो इसीलिए याद रखना कि ये दो अलग चीजें हैं, है एक ही सेक्शन बट दो मैटर से डील करती है। पहला कन्फेशन ऑफ द एक्यूज्ड
और दूसरा स्टेटमेंट ऑफ अ विटनेस। दोनों का ट्रीटमेंट भी फर्क है, क्योंकि पहले वाला मेरे आर्टिकल 23 क्लॉज 3 से हिट हो रहा है और दूसरा वाला नेचुरली एक्सिजेंसी है। हैविंग सेड दिस, एक और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये आदत मत डाल लेना 164 कराने की। 164 should be resorted to only in extreme cases, या 183 BNSS should be in extreme cases। नहीं तो पुलिस हर एक का 164 करा देगी, जो भी है चल मैजिस्ट्रेट के सामने चल, हमारी टेंशन खत्म। तो पुलिस का काम ही क्या, फिर निकालो ना, पुलिस को बंदी कर दो, फिर सारे मैजिस्ट्रेट ही करा लेगा सब कुछ। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था दिस इज अ डेंजरस हैबिट, बिकॉज पुलिस तो जबरदस्ती करा देगी, टेंशन डाल के करा देगी किसी को, वो अब बाइंड डाउन हो जाएंगे। दिस इज अगेंस्ट अगेन द फंडामेंटल राइट ऑफ लाइफ, बिकॉज इट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ अ फेयर ट्रायल। तो हर एक का 164 कराना वुड निगेट माय राइट ऑफ अ फेयर ट्रायल, विच इज अ पार्ट ऑफ माय राइट टू लाइफ। आप पुलिस वालों को नहीं जानते ना, और मेरे को छोड़ दो। कोई भी विटनेस है, उसको पुलिस लेके जाए तो उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो और कुछ बोल दे जो पुलिस ने बोला, बिकॉज पहले वो इतनी उसकी गर्दन पकड़ के चल रहे होते हैं, उनको पता है क्या है। सपोज यू आर अ वेरी इंपॉर्टेंट विटनेस एंड सपोज आई प्लांट माई वर्ड्स इन योर माउथ कि ये बोलना है आपको, एंड यू एंड नाउ यू अभी पुट अ प्रेशर कि हमने तुम्हारे सारे अकाउंट्स देख लिए, तुम इनकम टैक्स की चोरी करते हो, तो ना बोल और मैं तुम्हारे इनकम टैक्स की छापा मरवाता हूं। अब क्या करोगे? दिस नॉट कि डोंट थिंक कि पुलिस वाले कोई फिजिकल प्रेशर डालते हैं, हमारे पास बहुत कुछ होता है। तो इस तरह के प्रेशर्स बहुत कॉमन है। अब मेरा कोई भी है, उसका कोई ना कोई वीक पॉइंट ढूंढ लिया हमने, उसको हमने कह दिया ना बोल, हम इस पे कर रहे हैं। सो नाउ दैट कैन बी, नाउ इफ यू आर टेलिंग लाइज और आपके कहने पे उसको फांसी हो गई, बहुत डेंजरस है। ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने कही थी कि 164 हर एक को, या एक टाइम और आया था जब 164 मैजिस्ट्रेट ने भी मना कर दिया कि क्या मजाक है तुम्हारे को ला रहे हो मेरे पास। उन्होंने कहा चल मैजिस्ट्रेट भाड़ में जाए, हम एक काम करते हैं सबका एफिडेविट करा देते हैं, सारे विटनेसेस का एफिडेविट। और मैंने भी कराया है फ्रैंकली, एक टाइम आ गया था, मेरे को बड़ा अच्छा तरीका है, सबके एफिडेविट इधर, हम नोटरी बुला लेते थे, चाय पी इनका बना, वो सारे सबके बनाते थे और सबके बना लिया, ओए देख ले अब तू। और फिर 193 के ना छाप के कॉपी मैंने रखी हुई थी, उनको सबको दे देते थे कि ये है, ये पढ़ लो, अगर नहीं समझ आ रहा तो हिंदी में भी दे देते हैं आपको। तो विटनेस जाता था, 193 की इतनी सारी स्लिप्स हमने वो टाइप करा के उनको प्रिंट कराया, वो तो हर एक को दे देते थे कि अब तूने बोला तू अंडर एफिडेविट है, एंड ही वुड नॉट डेयर नाउ, वो इतना डर जाता था। सो व्हेन द सुप्रीम, तो हम ये 4-5 साल चला, क्योंकि मैंने भी चलाया, मुझे पता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट केम टू नो दिस, व्हाट इज दिस, वी एब्सोल्युटली वी क्रिटिसाइज दिस, हम बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे, ये तो आपने मजाक बना दिया। तो जाके फिर हमें डर के मारे बंद किया, नहीं तो हम नहीं बंद करने वाले थे। सो इसीलिए प्लीज रिमेंबर 164 में कराना इज एन एक्सट्रीम स्टेप, क्योंकि इसका मतलब ये है आपने अब उसको, जिसको हम कहते हैं कलम बंद करा दिया, इसको कलम बंद कहते हैं, क्योंकि कलम बंद हो गई। अब वो, अब हमने इसको जो हमने लिखवा दिया, अब वो बाइंड डाउन हो गया। सो इट्स नॉट अ इजी थिंग and should not be resorted to easily unless of course there are reasons। इसी एंगल से ये सेक्शन लिखा गया। चलिए देखते हैं अब दोनों इसके पार्ट्स देखते हैं। पहला कन्फेशन से डील करता है और दूसरा जो है, ऑलवेज गो टू द व्हाई ऑफ अ सेक्शन, डोंट रीड लॉ जस्ट लाइक दिस, वो कभी याद नहीं रहता, ना सेक्शन याद आता है ना उसका। जब आप उसके वाई समझ जाते हो, उसकी कहानी समझ जाते हो, फिर वो कभी भूलता नहीं है कि क्यों हुआ था। I can also cram. Confession is not under oath, it is a sign, it is not under oath, ये एग्जाम में आया हुआ है। पर when you understand the why, कि क्यों है ऐसा, फिर वो आप कुछ भी और टेढ़ा मेढ़ा भी उससे पूछ लो तो आप जवाब दे देते हो। So always whenever you read law,
Always read between the lines and always go to the why of every section कि ऐसा क्यों बनाया गया. चलिए 164 यहाँ सेक्शन 183 सबसेक्शन 1. अब पहले था एनी मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट पहले था. हाउएवर मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट हमने देखा खत्म ही कर दिया गया. देयर इज नो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट नाउ. तो अब उन्होंने लैंग्वेज थोड़ी चेंज कर दी. एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट in which the information about commission of any offense has been registered. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू. एनी मैजिस्ट्रेट लिखा है, एनी कोर्ट नहीं लिखा. एंड मैजिस्ट्रेट हियर मींस ओनली अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट. सो एनी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कहां, जहां ट्रायल होना है? नहीं. in which the information about commission of any offense has been registered, जहां पे एफआईआर दर्ज हुई है. may whether or not he has the jurisdiction in the case. So कोई भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड कर सकता है. जरूरी नहीं है कि उस केस में उसका जुरिस्डिक्शन है या नहीं है. सो जुरिस्डिक्शन ऑफ द केस इज ऑफ नो इंपॉर्टेंस. इनफैक्ट मैं आपको बताऊंगा अभी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस मैजिस्ट्रेट ने ट्राई करना है उसको कन्फेशन नहीं लेना चाहिए. नहीं तो क्या होगा? ही विल बी नेचुरली बायस्ड. सो जिसने ट्राई करना है उसको नहीं लेना चाहिए. दूसरी बात, सेशन जज कभी भी यह नहीं लेता द वर्ड इज मैजिस्ट्रेट. सो यहां भी खास ख्याल रखना, ये सारे प्रीलिम्स के क्वेश्चन है, उस टाइम स्ट्राइक नहीं करते. So any judicial magistrate of the district in which the information about commission of any offense has been registered may, whether or not he has a jurisdiction in the case, record any confession, A, and second part statement made to him in the course of an investigation under this chapter. So only ये investigation के time पर हो सकता है. So confession during investigation and statement during investigation made to him in the course of an investigation under this chapter or under any law for the time being in force or at any time afterwards. ये सारे क्वेश्चन प्रीलिम्स के हैं आपके. But before the commencement of the inquiry or trial. Commencement of inquiry, taking cognizance is an inquiry. So cognizance लेने से पहले आप कभी भी कन्फेस कर सकते हो या कभी भी स्टेटमेंट दिलाया जा सकता है. एक बार मैंने कॉग्निजेंस ले लिया, फिर ये सेक्शन रिडंडेंट है, फिर ये नहीं यूज कर सकते. So please remember, confession or statement has to be before taking cognizance. Once the inquiry starts, that means in a pre-trial process, or the trial starts, then it is another type of confession which is now under oath, and now it is straightway before the court. तो वो अलग कन्फेशन होता है. और अब वहां स्टेटमेंट देने की तो जरूरत ही नहीं, स्टेटमेंट दे ही रहे हैं सारे और अंडर ओथ दे रहे हैं ट्रायल में, तो वो तो अब सेंसलेस हो गया. सो ये जो है इन्वेस्टिगेशन के दौरान है. ये डोंट फॉरगेट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैटर. आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर. बहुत सारे प्रीलिम्स के क्वेश्चंस बन गए हैं. मैजिस्ट्रेट सिर्फ ले सकता है, वो भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ले सकता है, वो भी बिफोर कॉग्निजेंस हैज बीन टेकन. Provided that any confession or statement made under this subsection may also be recorded by audio video means, electronic means, in the presence of an advocate of the person accused of an offense. Now, since it is only dealing with person accused of an offense, so it doesn't deal with witnesses. So, जहां confession आप record कर रहे हो,
183 का या 164 का, वहां पे उसको आप रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। बट इफ रिकॉर्डिंग कर रहे हो, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो गया तो वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस माना जाता है, इसलिए उसके एडवोकेट का होना जरूरी है ताकि आर्टिकल 20 क्लॉज 3 इन्फ्रिंज ना हो जाए। प्रोवाइडेड फर्दर, ये दोनों प्रोवाइजो, ये सारे एक एक पॉइंट आपके प्रीलिम्स का है, प्लीज बी वेरी केयरफुल। Provided further that no confession shall be recorded by a police officer on whom any power of a magistrate has been conferred for the time being in force. That means commissioners of police, deputy commissioners of police, assistant commissioners of police are not empowered to take confessions. चाहे उनके पास हमने मैजिस्टीरियल पावर्स दी हुई हैं, पर कोई पुलिस वाले को किसी भी हालत में कन्फेशन अलाउड नहीं है, नहीं तो वो हिट हो जाएगा सेक्शन 25 से। No, even an exec, because any magistrate, the word magistrate in the beginning we have read, the word magistrate only reads means a judicial magistrate. So that is why executive magistrate के सामने allowed नहीं है. I'll be giving a judgment on this. Now, what will be the procedure? Subsection 2. The magistrate shall, before recording any such confession, explain to the person making it that he is not bound to make a confession, and that if he does so, it may be used as evidence against him. And the magistrate shall not record any such confession unless, upon questioning the person making it, he has reason to believe that it was made voluntarily. What are the safeguards which are given under BNSS before a magistrate records a confession of an accused during investigation? ये safeguards. तो पहला, he will explain to the person that he is not bound to make a confession. Second, he will make him aware that this, if he makes a confession, it will be used as evidence against him. And thirdly, he must ensure that the confession is being made voluntarily. Now, if at any time before the confession is recorded, the person appearing before the magistrate states that he is not willing to make the confession, the magistrate shall not authorize the detention of such person in police custody. सपोज वो आके कहता है जी मुझे तो पुलिस वालों ने जबरदस्ती भेजा है, तो अगर ऐसा होता है और वो कहते हैं ठीक है मैं नहीं लेता, ये नहीं है कि पुलिस वाले लेके आए, क्योंकि पुलिस वाले ही ला सकते हैं, आपको अच्छा ठीक है ले जाओ जिसको, और ले जाओ तो उसका क्या हाल करेंगे रास्ते में क्या, वहां रास्ते में ही शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए अगर वो मना कर देता है कि मैंने कन्फेशन नहीं करना, तो उसको वापिस पीसी कभी नहीं मिलता। इसीलिए पुलिस कभी भी शुरू में पुटअप नहीं करती, आखिरी दिन कस्टडी का करती है। अगर मुझे 5 दिन की पुलिस कस्टडी मिली है, तो 5वें दिन भी शाम को जब खत्म हो रहा होता टाइम, तब इसको कन्फेस करने ले जाते हैं, क्योंकि बाई चांस वहां जाके कहे जी मैंने तो नहीं करना, जबरदस्ती पुलिस वाले करा रहे हैं, तो अब वापिस वो आएगा नहीं है। तो इन दैट केस ही विल बी मे बी सेंट टू जेसी, वो तो बच गया। तो हमारी, अगर हम वापिस नहीं जाएगा तो हमारी पहली अगर कस्टडी है वो भी वेस्ट गई सारी। तो हम इतने एड़े नहीं है कि हम पहले ले जाएंगे, तो उसको आखिरी दिन लेके जाते हैं, आखिरी दिन भी दोपहर में। Okay, I hope everybody is now clear about these provisos. Fine. Subsection 4. Recording का तरीका क्या है confession का? Any such confession shall be recorded in the manner provided in section 316. तरीका जो है मैंने बोला था आपको, 183 has to be read with 316, वो यहाँ पे clear है. So any such confession shall be recorded in the manner provided in 316 for recording the examination of an accused person and shall be signed by the person making the confession. अब बहुत क्लियरली यहां लिख दिया कि it will be a signed statement, and it will be signed not under oath, and the magistrate shall make a memorandum. I told you magistrate had to certify. That certification comes in the form of a memo, a memorandum at the foot of such record to the following effect. वो certificate क्या होगा? I've explained to so and so
that he is not bound to make a confession, and that if he does so, any confession he may make may be used as evidence against him. And I believe that this confession was voluntarily made. It was taken in my presence. So please remember, he can't delegate it to someone else. कि तू मेरी जगह ले ले, मैं busy हूं. And was read over to the person. So अगर ये negate हो गए, सारी problem आ जाएगी. उसने नहीं लिया, confession vitiate होगी. या उसको read over नहीं किया, ताकि वो कह दे नहीं मैंने ऐसा तो नहीं कहा था. And admitted him by him to be correct. So it must be read over to him, and he must admit that exactly यही मैंने कहा है. And contains a full and true account of the statement made by him, signed A.B. Magistrate. क्वेश्चन ये उठता है कि सपोज मैं भूल गया, मैंने नहीं बोला उसको, मैं बिजी था, मैं बोलना भूल गया कि देख तेरे खिलाफ यूज होगा, या मैंने सर्टिफिकेट जो है नहीं लाला, जल्दी जल्दी में इतने काम होते हैं हम भूल गए. Will the trial be set aside? Or will the confession be rejected? इसके लिए जब हम जाते हैं सेक्शन 509 BNSS में, it says that it is not an illegal matter, it is a irregular matter. यानी कि ठीक किया जा सकता है. अगर प्रेजुडिस ना हुआ हो एक्यूज को, तो ठीक किया जा सकता है. So it is not something which is absolutely irrecoverable, so to say. अगर आपने जो नहीं किया, कोई प्रोसीजरल मिस्टेक कर दी है और प्रेजुडिस नहीं हुआ एक्यूज को, देन कोई बात नहीं, इट कैन बी सेट राइट अंडर सेक्शन. और उसके लिए स्पेसिफिक एक सेक्शन है सिर्फ इसी के लिए, 509 BNSS. एनी स्टेटमेंट अदर देन ए कन्फेशन. अब आ गया दूसरा पार्ट, स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट्स बाय विटनेस. या yes, because this is not a statement taken by the police. दोनों कॉन्ट्राडिक्ट भी हो सकता है, कॉरोबोरेट भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं. सी हमने मैजिस्ट्रेट को थोड़ा ना कॉन्ट्राडिक्ट करना है, हमने तो बंदे ने करना है. तो वो यही कहेगा ना, वो रिट्रैक्ट करेगा. कॉन्ट्राडिक्ट हम किस तरीके से करेंगे, विल रिट्रैक्ट इट कि सर मैंने नहीं बोली, सॉरी. क्योंकि अगर मैं ओथ पे ले लूं तो फिर अगर इसने झूठ बोला है तो ये डर जाएगा, दोबारा वो झूठ ही बोलेगा. और मेरा बेसिक जो एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 20 क्लॉज 3, वो ऑफेंड हो रहा है, इसलिए नहीं ले रहे. पर जब आप ट्रायल के टाइम पे लेते हो एक्यूज का कन्फेशन, वो अंडर ओथ होता है, उसको कहते हैं विटनेस बॉक्स में. तब क्या डरने की बात है. अब तो ये पुलिस वाले ला रहे हैं ना. हाँ करेक्ट. अब इसके बाद एकदम जुडिशियल में भेज देते हैं. मैंने इनको यही बोला ना, आपको मैं ले गया, आपको मैंने बोला तूने ऐसे बोलना है, आपकी मैंने कोई वीकनेस पकड़ी हुई है, आप बिजनेसमैन हो, राइट. अब मैंने आपको कोई भी टेंशन डाल दी, और बहुत करते हैं पुलिस ना, क्योंकि अगर हम पनिशमेंट रखते, वो फिर वही बोलेगा जो मैंने अंडर ओथ बोला. तो मेरा फंडामेंटल राइट है, और आर्टिकल 23 तो मेरे फंडामेंटल राइट टू लाइफ से जुड़ा हुआ है. कैसे आप ये इसको मेरे फंडामेंटल राइट को ही खा जाओगे. मैं बता तो रहा हूँ, फिर तो मैंने आप कर दो, मुझे बड़ा मजा आ जाएगा एज ए पुलिस वाला. हम रोते ही हैं कि यार ओथ पे भी नहीं है यार, ये तो बिदक जाएगा. हम डरे ही ये रहते हैं. यहां तक कि वो जब जेल चलाते हैं वहां भी मैसेज कराते हैं कि सोच ले, उल्टा नहीं बोलना, अभी भी हमारी वो तेरी गुंडी हमारे हाथ में है. वी सेंड मैसेजेस. क्यों नहीं अलाउड, एफिडेविट तो है ही. सी एफिडेविट इज नॉट एविडेंस, but affidavits can be put up in evidence, though they are not evidence per se, but affidavits are documentary evidences. And now he will be, अब अगर वो करता है, एविडेंस नहीं है,
बट एफिडेविट तो दिया है उसने, ऐसे तो फिर आपकी प्लेंट प्लेंट या आपका WS इज इट नॉट एविडेंस? सो इसीलिए दे आर नॉट एविडेंस टिल द मेकर ऑफ द पर्सन कम्स इन द कोर्ट एंड टेस्टिफाइज। तो आ जाएगा वो, अब उस पर प्रेशर है टेस्टिफाई करने, जब आएगा हम कहेंगे सोच लेना 193 तुझे स्लिप दी हुई है, हमने पढ़ के आना इसको, 7 साल की सजा हो जाएगी तुझे। एंड दिस वर्क्स, आई सीन इट वर्क, बहुत होता है और बहुत कॉमन है। अब तो पुलिस का आपको वहां नहीं पड़ा, ना ही पड़े, बट आई एम टेलिंग यू दिस हैपेंस। जहां बहुत सीरियस केसेस होते हैं हम इंश्योर करते हैं कि एक भी लूज एंड ना रह जाए, चाहे उसमें कुछ भी करना पड़े। बिकॉज पुलिस का भी मैं समझ सकता हूँ, आई बीन इन द पुलिस सो लॉन्ग, कि हम भी चाहते हैं कि ये बच ना जाए, और वी गो ओवरबोर्ड। यार ये लूज एंड मिल रहा है, एक काम करते हैं इसको उठाओ, इसको कहते हैं ऐसा बयान दे, इसका पहले इसको उठाने से पहले इसके वीक पॉइंट ढूंढो। ओके ही इज अ बिजनेसमैन, चल इसकी फटाफट, इनकम टैक्स वाले सारे दोस्त ही होते हैं, इसकी यार रिटर्न्स देना। अब थोड़ा हम पता लगाते हैं इसका क्या, अच्छा ये तो सारा ब्लैक मनी है, अब ठीक है आ जाओ जी बैठ जाओ मेरे पास। ये मैंने सुना है आप कुछ करते नहीं, ये आपका इनकम टैक्स का इतना इतना वो पसीने पसीने हो जाता है। नहीं टेंशन मत रखो, हम पुलिस वाले, हम इनकम टैक्स वाले थोड़ा, आप बस ये बयान दे देना कल, कुछ नहीं होगा आपको, ये मेरा प्रॉमिस है, इनकम टैक्स को नहीं जाएगी ये बात, सारा रिकॉर्ड लेके बैठा होता हूँ मैं। डोंट अंडर एस्टिमेट इंडियन पुलिस। ओके, तो इसीलिए अब आप सोचो कि कितना कुछ होता है। एक्यूज वो अंडर ओथ ही नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, वो तो सब ऐसे ही कॉन्ट्रडिक्ट करता है। तूने ये ऑफेंस किया, नहीं, ये गन तेरी है, नहीं, तू वहां पे था, नहीं, हर चीज तो आप वकील लोग क्या करते हो, यही तो, क्या वैल्यू। हाँ बट ये अब अंडर ओथ है। यस नाउ, हाँ अब ये नहीं, अब ये है इट कैन नाउ, अब इसका यूज क्या है, इट कैन नाउ बी यूज टू करोबरेट कि तूने ये बात मैजिस्ट्रेट के सामने कही थी, क्यों, नाउ यू आर रिट्रैक्टिंग, व्हाई, तू रिट्रैक्ट जितना मर्जी कर ले हम तो मानेंगे, मैंने पढ़ा है ना आपको, रिट्रैक्टेड कन्फेशंस आर कन्फेशंस। सो आप करते रहो रिट्रैक्ट। अब आप एक ही रिट्रैक्शन कहोगे ना कि जी मुझे पुलिस ने मारा हुआ था या पुलिस ने डर डाला हुआ था, तो हम ये फिर उसका काउंटर क्या करती है प्रोसिक्यूशन, कि तुझे पुलिस वालों के सामने थोड़ा कन्फेशन कर रहे थे, और तुम्हें पता था हम ना तो पुलिस के पास वापस भेजेंगे, मैजिस्ट्रेट कहता है ये बात, और यहां से हम तुझे सजा जैसी भेजेंगे, तो ये डर क्या था। पर वो डर इतना होता है, आपके लड़कों को उठाया होता है हमने, गायब कर दिया होता है, आपको उसके बाल काट के भेज देते हैं, कहते हैं देख अभी तो बाल ही कटे हैं, फिर और क्या आएगा पता नहीं, एनीथिंग इज पॉसिबल, आई हर्ड पिक्चरों में ऐसे होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे स्टेटमेंट्स की बात। एनी स्टेटमेंट अदर देन अ कन्फेशन made under subsection 1 shall be recorded in such manner hereinafter provided for the recording of evidence as is in the opinion of the magistrate best fitted to the circumstances of the case, and the magistrate shall have the power to administer oath, पहले नहीं था अब आया, to the person whose statement is so recorded। अब वो प्रेशर में है, क्योंकि अब अगर वो रिजाइल करता है, हॉस्टाइल होता है, तो अब हम 193 की कार्रवाई कर सकते हैं। इन केसेस पनिशेबल अंडर 64, 65, 66, 67 वगैरह वगैरह वगैरह, ऑल दीज आर आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन और रेप, ऐसे मामलों में ऑल सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन उनको सबको डील कर रहा है। द मैजिस्ट्रेट shall record the statement of the person against whom such offense has been committed in the manner specified in subsection 5 as soon as the commission of the offense is brought to the notice of the police। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा गया था। अगर आप बारीकियों में पढ़ो, जब हम एफआईआर का सेक्शन पढ़ रहे थे, वहां वर्ड मे यूज था।
बट यहां वर्ड शैल है। जहां भी कोई सेक्सुअल ऑफेंस का विक्टिम है लड़की, द मैजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड। और नॉट ओनली दिस, क्योंकि मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड कर रहा है, अंडर ओथ कर रहा है, एग्जामिनेशन इन चीफ की कुछ केसेस में जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस विल बी टेकन एज एग्जामिनेशन इन चीफ, सीधा क्रॉस होगा उसका। सो यहां पे मैजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड, यहां इसको अंडरलाइन कर लेना और मत भूलना कि जहां भी सेक्सुअल ऑफेंसेस के मामले हैं विमेन के खिलाफ, द मैजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द स्टेटमेंट। As soon as the commission of the offense is brought to the notice of the magistrate, लिखा है कि पुलिस लिखा है, पुलिस, यानी एफआईआर के एकदम बाद। इसमें जरूरी नहीं है कि पुलिस लेके जाएगी। ये बारीकियां पकड़नी सीखो, तब मास्टरी होती है क्रिमिनल लॉ की या सीपीसी की। अभी यहाँ पे दो हमारे प्रोवाइजोस नए आए हैं, इन दोनों प्रोवाइजोस को देखते हैं जो बीएनएसएस में आए हैं। प्रोवाइडेड दैट सच स्टेटमेंट shall, as far as practicable, be recorded by a woman magistrate, and in her absence by a male magistrate in the presence of a woman. कायदे से ये स्टेटमेंट एक वुमन मैजिस्ट्रेट ही लेगी, और बाई चांस वो वुमन मैजिस्ट्रेट नहीं है तो वहां पे फिर मेल अगर मैजिस्ट्रेट ले रहा है तो इन द प्रेजेंस ऑफ अ वुमन लेगा। इसमें इन द प्रेजेंस ऑफ अ वुमन ऑफिसर नहीं लिखा, तो एक वकील भी हो सकती है मेरे कोर्ट की, उसको भी कह सकता हूं। Provided further that in cases relating to offences punishable with imprisonment for 10 years or more, or imprisonment with life or death, the magistrate shall record the statement of the witness brought before him by the police officer. और जहां पे कोई भी ऑफेंस है, एनी ऑफेंस, नॉट ओनली सेक्सुअल ऑफेंस, एनी ऑफेंस which is punishable with 10 years or more, the magistrate shall record the statement of the witness brought before him by the police officer. ये दोनों प्रोवाइजोस पहले नहीं थे, अब नया आ गया, बिकॉज नॉर्मली देखा गया है कि जो सीरियस ऑफेंसेस होते हैं उसी में विटनेस भिदक जाते हैं, पैसे चलते हैं बहुत, तो इसीलिए इस चीज को कवर अप करने के लिए ये रखा गया। एंड बहुत बड़ा हाथ इसमें जेसिका लाल के केस का था। नेक्स्ट, प्रोवाइडेड ऑल्सो that if the person making the statement is temporarily or permanently mentally or physically disabled, the magistrate shall take the assistance of an interpreter or a special educator in recording the statement. अगर कहीं वो डिसेबल्ड है तो कोई भी स्पेशल इंटरप्रेटर या एजुकेटर जो उसकी साइन लैंग्वेज को समझ सके। एंड प्लीज रिमेंबर, स्पेशल इंटरप्रेटर जो होता है वो माँ बाप भी हो सकते हैं, बिकॉज पेरेंट्स नो बेस्ट कि बच्चा क्या साइन लैंग्वेज यूज कर रहा है। So either you can use the services of an official sign language reader, or even माँ बाप भी हो सकते हैं। Provided also that if the person making the statement is temporarily or permanently mentally or physically disabled, the statement made by the person with the assistance of the interpreter or special educator shall be recorded through audio video electronic means, preferably by mobile phone। ये चीज भी अभी ऐड हुई है, जहां पे कोई मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड है और साइन लैंग्वेज से बोल रहा है तो कल को साइन थोड़ा कोई रिकॉर्ड होने वाले हैं, अब रिकॉर्डिंग करोगे आप। सो ये एक नया लॉ आ चुका है कि कहीं भी आप साइन लैंग्वेज यूज कर रहे हो उसकी आप ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करोगे,
बिकॉज साइन लैंग्वेज तो कहीं से कहीं कुछ भी इंटरप्रेट हो सकता है, इंटरप्रेटर ही आपकी मिल गई या मिल गया तो क्या करोगे, इसीलिए उसकी हम हमेशा ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं। बी, statement recorded under clause A of a person who is temporarily, permanently, mentally or physically disabled shall be considered a statement in lieu of examination in chief. अगर कोई डिसेबल हो गया मेंटली या फिजिकली और उसका हमने अभी साइन लैंग्वेज या जैसे भी उसका हमने ले लिया स्टेटमेंट, वो एग्जामिनेशन इन चीफ माना जाएगा और सीधा उसका क्रॉस कर सकते हैं। Shall be considered a statement in lieu of examination in chief as specified in section 142, such that the maker of the statement can be cross examined straightaway without the need for recording the same, without the need for recording a fresh examination in chief. So this will be taken as an examination in chief. Subsection 7. The magistrate recording a confession or statement under this section shall forward it to the magistrate by whom the case is to be inquired into or tried. अब नेचुरली जो ट्राई करेगा उसको हम अब भिजवा देंगे। Now question arose before the Punjab Haryana High Court, State of Haryana versus Parmanand, 1995. Haryana versus Parmanand, 1995. Any statement of a witness recorded by an executive magistrate or a second class magistrate has no value in the eye of law. So अगर एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट ने किया है या कोई सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट ने किया है, अब यहाँ पे आई वुड जस्ट लाइक टू से that this present law will not hold good on this judgment, क्योंकि इसमें any magistrate लिखा है। So पहले जो क्लियर था कि फर्स्ट क्लास ही है वो चेंज हो गया। So any will now of course be including JM2. क्वेश्चन ही उठा के एक्यूज खुद जाके बोल सकता है कि जी आप मेरा स्टेटमेंट ले लो, मेरा कन्फेशन ले लो, मैं आ गया। ये मामला है सुप्रीम कोर्ट के सामने, जोगेंद्र नाहक वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा, जोगेंद्र नाहक वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा, 1999 सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्लियर लिखा गया, where any person appears before the magistrate independently of his own volition, अपनी मर्जी से खुद ही चला गया, the statement of that person recorded is of no credence. Reason being that there is no way to identify him. So in other words, in the words that the person has to be produced by the police is very important. ये मामला दोबारा एक और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में क्लियर किया गया, अजय परमार वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, 2013 सुप्रीम कोर्ट। यही चीज रीइटरेट की गई, अजय परमार वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, 2013 सुप्रीम कोर्ट। Now the question came up whether what is the evidentiary value. Now both of these, both the confession and the statement are not substantive evidences. A judgment cannot be based merely on a statement or confession taken under this section. In fact, it was held by the Supreme Court
that statements of witnesses recorded under this section should be approached with caution, because the witnesses feel tied to their previous statements, क्योंकि oath में है, because they feel tied to their statements which were made under oath. तो बाई चांस उनका जो स्टेटमेंट है अंडर सम प्रेशर हुआ, वो उनको फिर झूठ ही बोलेंगे वो कोर्ट में भी. सो 164 यहाँ ये वाले सेक्शन के 183 के स्टेटमेंट्स हैव टू बी टेकन विद ग्रेट कॉशन बाय द कोर्ट. ये चीज क्लियर की सुप्रीम कोर्ट ने. बालक राम वर्सेस स्टेट 1974 सुप्रीम कोर्ट. बालक राम वर्सेस स्टेट 1974 सुप्रीम कोर्ट. So what is the evidentiary value? 164 या 183 के statements or even confessions can be used for both corroboration and contradiction. So they can be used both for contradiction as well as corroboration. However, that does not mean that we should distrust. We should not start with a presumption of distrust. Rule of caution does not mean that I start with a presumption of distrust. Kamal Pal, Kamal, Kamar Pal Singh versus State of Haryana, 1994 Supreme Court. Kamar Pal Singh versus State of Haryana, 1994 Supreme Court. Also, the confession must be recorded by the magistrate. Pre-recorded confessions लिख के जो लाता है वो they are not receivable as evidence. So pre-recorded confessions कि वो लिख के ले आया जी और उसने कहा हाँ मैंने यही सब बोला है, वो they will not be taken as evidence. So the evidence must be recorded by the magistrate. Similarly, oral confessions cannot be allowed. Confessions must be made in question answer form. And they must cover all the incriminating circumstances. Whenever a confession is to be recorded by the magistrate, he must make the accused at ease and also notice if there are any telltale marks on his body. कोई physical torture का marks तो नहीं है उसकी body पे. Because the base of this section is repentance. अपनी मर्जी से repent करके वो बोल रहा है. Also, it is the duty of the magistrate कि जब वो confession ले तो पुलिस ऑफिसर आसपास नहीं होने चाहिए. All police officers must be excluded when the confession is being recorded. Hari Krishnan versus State of Haryana, Punjab Haryana High Court. Hari Krishnan versus State of Haryana, Punjab and Haryana High Court.
Normally, when a confession, when a police brings anyone for a confession, the confession should not be taken immediately. He should be sent to the JC for cooling period. जैसी पुलिस लाती है इमीडिएट कन्फेशन नहीं लेना चाहिए, उसको 2 दिन के लिए जेसी भेजना चाहिए सोचने के लिए कि उसको देना है कि नहीं देना. अगर आपने ओथ दिला दिया इसको, then what happens? बाबू भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2007 सुप्रीम कोर्ट. If a accused is administered an oath before making a confession, then it is totally prohibited. It will vitiate the confession. I hope everybody is clear on this law. We now go on to the next section, which is section, yeah. Only 2 दिन की सजा 10 साल से ऊपर है. बट ऐसी कई बार क्या होता है, यू हैव टू कंपेयर कि इसका नुकसान ज्यादा है या फायदा ज्यादा है. अभी तक हमने देखा है कि जितने भी सीरियस केसेस हैं मर्डर वगैरह में, मोस्टली में एक्विटल हो जाता है, बिकॉज जो मटेरियल विटनेसेस हैं वो हॉस्टाइल हो जाते हैं. आप कोरोबरेट भी कर सकते हैं कि उसने ये कहा. अभी अब चेक तो है ही, बाई चांस वो उल्टा बोले, हॉस्टाइल हो जाए, अब उसमें प्रेशर तो है ना. नाउ द बर्डन ऑफ प्रूविंग इज ऑन हिम कि तू क्यों बितका. रहेगा, बट एट द सेम टाइम ये भी तो रहेगा ना कि वो हॉस्टाइल नहीं होगा. हॉस्टाइल होगा तो बहुत जेन्युइन रीजन होगा तभी होगा, और वो रीजन बताएगा. तो वही मैंने कहा ना, यू हैव टू बैलेंस. देखो बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस किस तरफ है. एक्सेप्शन ही कहेंगे, क्योंकि इन द सेंस कि अब हम कह रहे हैं कि इनको लेना ही लेना है, आप इनका करा लो ताकि इट इन द इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस. एक आदमी मरा है या कोई जो भी बहुत सीरियस ऑफेंस है, 10 साल, डकैती है, रॉबरी है, रेप है, उन केसेस में है, तो वी वांट कन्विक्शन टू बी डन. पर क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि मटेरियल विटनेसेस को हम खरीद लेते हैं. अब नहीं खरीद पाएंगे. खरीदेंगे तो अब उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर सकते हैं. कैसा नहीं होता? अब करेंगे, क्योंकि अब तो मैंडेटरी कर दिया ना. मैंने कहा ये नया लॉ है, तो पहले तो हम, पहले पुलिस ही नहीं कराती थी. क्योंकि पुलिस इसलिए नहीं कराती थी क्योंकि बहुत सारे नेगेटिव रीजंस हो जाते हैं. हम ही कल को चेंज करना चाहे इन्वेस्टिगेशन तो नहीं कर पाएंगे. कई बार क्या होता है, नया हमारे को कोई मिल जाता है एविडेंस, हम बंद जाते हैं 164 से. जितनी भी नहीं, जितनी भी जो मटेरियल विटनेसेस है उनको करा लेंगे. करेक्ट. Yes, confession only is substantive in case it is made in a trial. ये तो अब it is not under oath, तभी तो हमने under oath नहीं रखा इसको. ओके, अब हम आते हैं विक्टिम का, रेप विक्टिम का मेडिकल एग्जामिनेशन. हम पहले पढ़ चुके हैं कि एग्जामिनेशन ऑफ द एक्यूज इज मैंडेटरी, वो जबरदस्ती करा सकते हैं.
पर विक्टिम का राइट ऑफ प्रिवेसी फंडामेंटल राइट को मानते हुए हम उसकी जबरदस्ती नहीं करा सकते, बट जहां वो मना करती है अपना मेडिकल कराने से, प्रिजम्पशन कैन बी टेकन अगेंस्ट हर. सो लेट्स क्विकली गो थ्रू दैट. Where during the stage when an offense of committing rape or attempt to commit rape is under investigation, it is proposed to get the person of the woman with whom rape is alleged or attempted to have been committed or attempted examined by a medical expert. Such examination shall be conducted A by a registered medical practitioner employed in a hospital run by the government or a local authority, and in the absence of such a practitioner by any other registered medical practitioner only, with the consent of such woman or of a person competent to give consent on her behalf in case she is unable to give consent. And such woman shall be sent to such registered medical practitioner within 24 hours from the time of receiving the information relating to the commission of such offense. The registered medical practitioner to whom this woman is sent shall without delay examine her person and prepare a report of his examination giving the following particulars, namely. अब यहाँ पे हिज नहीं लिखना चाहिए था, इनको हर लिखना चाहिए था, क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि रेप विक्टिम्स मस्ट ओनली बी एग्जामिन्ड बाय फीमेल प्रैक्टिशनर्स. Giving the following particulars, namely the name and address of the woman and the person by whom she was brought, the age of the woman, the description of the material taken from the person of the woman for DNA profiling, marks of injury, general condition of the woman, other material particulars in reasonable detail. The report shall state precisely the reasons for each conclusion arrived at. सेम ही है, जो आदमी का था वही जो एक्यूज का था, सेम यहाँ पे almost same. The report shall specifically record that the consent of the woman or the person competent to give such consent on her behalf had been obtained. Consent is mandatory. The exact time of commencement and completion of the examination shall also be noted in the report. The registered medical practitioner shall, within a period of 7 days, forward the report to an IO who shall forward it to the magistrate, referred to in section 193 as part of the documents. अब ये concerned IO को भेजेगा, IO magistrate को भेज देगा. Nothing in this section shall be construed as rendering lawful any examination without the consent of the woman. If consent is not given, it shall not be a lawful examination. Examination and registered medical practitioner will have the same meaning जो हम पढ़ चुके हैं सेक्शन 51 में, जब एक्यूज के एग्जामिनेशन की बात कर रहे थे. सो बस एक ही चीज खास ख्याल रखना, एक्यूज का हम जबरदस्ती करा सकते हैं मेडिकल, यहाँ पे कंसेंट के बिना तो अनलॉफुल हो जाएगा. बट देन एज आई सेड, अगर वो लड़की मना करती है, इट डेफिनेटली रेजेस अ प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ द एक्यूज्ड. व्हाई शुड शी रिफ्यूज? अगर वो रिफ्यूज कर रही है तो उसका उसके फेवर में ना होता. You already finished 185 and 186. करेक्ट. वही मैंने कहा ना, मैंने हिज पे तभी एकदम ऑब्जेक्शन दे दिया कि हिज क्यों लिखा है इन्होंने. अब मान के चलेंगे हिज इंक्लूड्स हर, वो वाला. बट दे आई मीन दे शुड नॉट मेक सच फुलिश मिस्टेक्स. इट्स अ इंडियन लॉ. ये पूरे इंडिया का एक ही प्रोसीजर है, पूरे जितने भी हमारे क्राइम्स हैं उनका एक ही प्रोसीजर है. वो तो ठीक तरह लिख दो. यू कांट अफोर्ड, आई मीन ये थोड़ा ना कि आपका एलएलबी का टेस्ट हो रहा है, चलो गलतियां कर लेंगे. यू कांट मेक अ मिस्टेक इन दैट टू. अब कल को सपोज एक आदमी कर लेता है, वो मैं कल को ऑब्जेक्शन मारता हूँ तो वो कहेगा देख लो जी हिज लिखा हुआ है. तो ये चीजें, व्हाई व्हाई लीव एनीथिंग फॉर एनी टू टू इमेजिनेशन. चलिए अब हम चलते हैं एक बहुत ही खतरनाक सेक्शन जो अब बन गया है 187.
erstwhile section 167, the most criticized section of the new BNSS. मैं पहले 167 बता देता हूं आपको, जो पुराना था. पुलिस अरेस्ट करती है, 24 घंटे के अंदर सपोजेडली इन्वेस्टिगेशन खत्म कर लेती है. 57 सीआरपीसी में वो 24 घंटे के अंदर अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है. अगर उसकी इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हुई तो वो फर्दर कस्टडी मांगती है, फर्दर डिटेंशन मांगती है. वो मांगती है अंडर सेक्शन 167. पहले ये था कि जब मैं 24 घंटे के बाद मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करता हूं 57 सीआरपीसी में, तो मैं 167 में ही उसका एक्सटेंशन मांग सकता हूं. कितने दिन का एक्सटेंशन मांग सकता हूं? पुलिस 15 दिन, वो भी पहले 15 दिन के अंदर अंदर. एक बार 15 दिन पूरे हो गए, फिर मैं पुलिस कस्टडी नहीं मांग सकता. इवन कल को ये सीबीआई में चला जाए केस, वो कहे जी हमने तो एक दिन का भी नहीं लिया, नहीं, 15 दिन ऑन द होल. एक दिन भी एक्स्ट्रा नहीं मिल सकता. जजमेंट्स आए कि सपोज पहले मैंने 5 दिन आपको पुलिस कस्टडी दे दी, फिर मैंने 5 दिन आपको जुडिशियल कस्टडी दे दी, आपने फिर अप्लाई किया, फिर 5 दिन पुलिस कस्टडी मिल गई, तो 5 + 5 + 5, चाहे 5 दिन जुडिशियल कस्टडी के थे, अगर 15 दिन पूरे हो गए तो फिर आपको 16वां दिन पुलिस कस्टडी का नहीं मिल सकता. सो यानी कि लॉ क्या था? 15 दिन मैक्सिमम, वो भी पहले 15 दिन के अंदर अंदर. एक बार आपके पहले 15 दिन पूरे हो गए, कोई पुलिस कस्टडी नहीं मिल सकती थी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि इन्वेस्टिगेशन चेंज हो गई, सीनियर ऑफिसर के पास चली गई, सीबीआई के पास चली गई, किसी के पास चली गई. उसके बाद मेरे पास दो विकल्प होते थे एज अ मैजिस्ट्रेट. या तो मैं आपकी बेल ले लेता था, बॉन्ड आपके भरवा लेता था, और या फिर आपको जुडिशियल कस्टडी भेज देता था. जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी, आई कांट कीप यू इन जेल फॉर एवर. इसीलिए अगर आप, इट इज देयर इज अ ड्यूटी ऑफ द पुलिस टू फिनिश द इन्वेस्टिगेशन क्विकली, क्योंकि आप जेल में हो. पुलिस वाले तो बैठे रहते हैं, पता चला नहीं खत्म की इन्वेस्टिगेशन. अगर आपने पुलिस की इन्वेस्टिगेशन खत्म ना की, अगर कोई ऑफेंस है जो 10 साल से कम पनिशेबल है, 60 दिन के अंदर अंदर, और अगर 10 साल से ऊपर है तो 90 दिन के अंदर अंदर, तो हम आपको जबरदस्ती बेल दे देंगे. देन बेल बिकम्स एन इनडिफिजिबल राइट. जैसे ही आज मेरा 90 दिन खत्म हुए, 91st डे को 10 बजे मेरा वकील पहुंच जाएगा कि सर ये लो मेरी बेल, आपको देनी पड़ेगी. 90 दिन या 60 दिन कौन से दिन से? 24 घंटे जब मैंने आपको पेश किया था पहली बार मैजिस्ट्रेट के सामने, उससे. इन अदर वर्ड्स, अगर मैं 60 दिन में या 90 दिन में एज अ केस में भी खत्म ना कर पाया, तो मुझे बेल मिलनी ही मिलनी है. चाहे मर्डर का केस हो, चाहे रेप का केस हो, मुझे मिलनी मिलनी. जेसी कब तक चल सकती है? अगर हम सेक्शन 309 में जाएं सीआरपीसी की, एंडलेस हो सकती है. हर 15 दिन में आपको मेरे को कोर्ट में पेश करना है, और अगले 15 दिन के लिए रिन्यू हो जाएगी. 20 साल अगर केस चल रहा है, 20 साल में जेल में रह सकता हूं एज अंडर ट्रायल. यानी कि पुलिस कस्टडी मैक्सिमम 15 दिन,
जेसी अनलिमिटेड, रिन्यूएबल आफ्टर एवरी 15 डेज, ये था लॉ। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि 15 दिन के बाद पुलिस कस्टडी मिल ही नहीं सकती, कुछ भी कर लो, चाहे डीजी क्यों ना उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए उसको बोला जाए, तब भी नहीं मिलेगी, या सीबीआई को दे दो तब भी नहीं मिलेगी। अब ये लॉ चेंज हो गया। अब आज टाइम खत्म हो गया, हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे कल, बिकॉज दिस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, आई डोंट वांट टू रश इट। मैं कल इसको कवर करूंगा, दैट हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड। फाइन, विल टेक इट अप फ्रॉम हियर इन माय नेक्स्ट लेक्चर।